से क्या फायदा, सामने निरुपमा मैडम बैठी होंगी, सब बेकार हो जाएगा। मैं अभी ब्लॉक करता हूं उनको। नहीं 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 नहीं। हाँ, वो ऑन, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। जी सो सर। नाउ यू कैन स्टार्ट। So in this last session of this invited lecture series on biological science, it was jointly organized by GPGC Bajpur and SRBS. It is my privilege to welcome Dr. Adarsh Pandey, who is a very eminent scholar of botany and also president of SRBS. Now I call upon Dr. Neelam Manola ma'am to formally introduce our guest to our audience. Over to you, Thank, Dr. Manola. thank you, sir. Thank you very much for providing me the opportunity to introduce our guest speaker today. Good morning, everyone, and I welcome you all on the 7th and last day of this lecture series on biological sciences 2020. It is our immense pleasure to have Dr. Adarsh Pandey as eminent speaker for today's session. Dr. Adarsh Pandey is Assistant Professor and HOD of Botany Department at SSPG College, Shahjahanpur, UP. He holds PhD from Bareilly College, Bareilly. Dr. Pandey has 22 years of teaching and research experience. He has published 34 research papers, 6 books, and 2 book chapters. He has attended 62 national and international seminars till date and has presented 39 papers over there. He is life member of 10 scientific bodies. He has been honored with 3 fellowships and 8 awards. Dr. Pandey has delivered 7 invited lectures in different academic events till date. Under his guidance, 2 students has completed their MPhil. He has done 2 foreign visits for academic purpose. Now I request Dr. Adarsh Pandey to deliver his lecture on new concepts in life science. Please. Thank you so much, Dr. Neelam. First of all, I would like to thank every person who is associated with the Government Degree College Bajpur, including the principal ma'am, including the Dr. Atul Upreti, including Dr. Nirupama Dalakoti, including Nutan Srivastava, and including Dr. Ahmed, who delivered the beautiful lecture on सर आपका माइक ऑफ हो गया है। now I think everyone is listening me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Slides are visible Yes, sir. and I am also audible. Yes, sir. Okay. Okay. So here I am going to deliver a lecture on new concepts in life science. Now I am going to present it in the mixed language, including Hindi and English both, as we have students from all the environments. तो प्यारे बच्चों, आप सबका यहाँ पर खूब सारा स्वागत है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस समय न्यू कॉन्सेप्ट्स इन लाइफ साइंस की। तो न्यू कॉन्सेप्ट से मेरी मुराद ये है कि मैं वो बताना चाहता हूँ जो मैंने इन दिनों नया सीखा। दरअसल होता क्या है कि जब हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं या कोई लेक्चर अटेंड करते हैं या कुछ भी लेक्चर सीरीज अटेंड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम उस वेबिनार के बाद, उस ई कॉन्फ्रेंस के बाद या उस लेक्चर सीरीज के बाद कोई भी चीज जो है वो अपनी जानकारी में इजाफा नहीं कर रहे होते हैं, यानी हमारी नॉलेज में कोई इन्हांसमेंट नहीं हो रहा होता है, हम कुछ सीख नहीं रहे होते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग आज कुछ नया सीखें, कुछ ऐसी बात जाने जिससे देख करके हमें लगे कि हाँ, हमने कोई नई चीज आज पढ़ी। या यूं कहें, आपने अगर कोई मैजिक शो देखा होगा, आपने कोई जादू का शो देखा होगा, तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक हैट होता है जिसमें से जादूगर खरगोश निकलता है।
और जब वो खरगोश निकालता है तो आपको लगता है कि हैट अब खाली हो गया, थोड़ी देर बाद वो फिर उस हैट से एक खरगोश निकालता है। मेरा ये मानना है कि एक टीचर का काम एक जादूगर की तरह होता है। वो मंच पर हैट में से खरगोश निकालता है और बच्चे जो सामने बैठे होते हैं या ऑडियंस जो स्पेक्टेटर्स जो सामने बैठे होते हैं उनके मुंह से वाह 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 निकलती रहती है। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं हर बार बॉटनी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, लाइफ साइंस की कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें आप लोगों को बताऊं, खुद भी सीखूं, आपको भी सिखाऊं, और इस प्रकार से सीखने और सिखाने की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। सो हियर गोज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन लाइफ साइंस। स्लाइड चेंज हो गई है वहां पर? Yes, sir. Okay. Can you see this thymine in DNA and RNA? हम लोग सब जानते हैं कि थायमीन एक बेस है जो डीएनए में पाया जाता है एंड यूजुअली इट इज नॉट फाउंड इन आरएनए। जब हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। हकीकत बात यह है कि दिस इज नॉट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। द बेसिक डिफरेंस between DNA and RNA is about the pentose sugar. It is deoxyribose in DNA and it is ribose in RNA. तो फिर ये थायमीन का कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपने सामने स्क्रीन पर इस समय ट्रांसफर आरएनए का एक स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ट्रांसफर आरएनए का ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो टी साइसी आर्म लूप दिखाई दे रहा होगा आपको। इस लूप में आप देखें, ये मैंने एरो बना रखा है यहां पर आपको थायमीन दिखाई दे रहा होगा विच इज अटैच्ड विद राइबोस शुगर। ये जो थायमिडीन है जो मॉडिफाइड बेस है, इट इज एक्चुअली थायमीन। अगर ये थायमिडीन हमको आरएनए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये बात बोलते हैं कि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, ये बात गलत है। हमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हमको क्या बोलना चाहिए? हमको बोलना चाहिए कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन होता है। क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. जब कभी भी कोई दूसरा आदमी जो सुनने वाला है, यहां पर देखने वाला है, अगर उसको वो स्क्रीन प्रेजेंट करने लगता है तो फिर हमारी स्क्रीन दिखना दिक्कत हो जाती है। समस्या ये है। तो मैं इसको दोबारा से एक बार रिज्यूम करता हूं अपने प्रेजेंटेशन को, और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। क्या अब स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, अब सबको दिखने लगी है। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि कोई भी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करे। आप लोग जैसे ही अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, मेरी स्क्रीन प्रेजेंटेशन गायब हो जाएगी। ठीक, ओके ओके, सबको पता लग गया? बस स्टॉप चैट बॉक्स। हाँ हाँ, मुझे मालूम है सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन। ओके ओके, इट्स ओके ओके ओके। तो ये जो थायमीन आरएनए में होता है, इसका मतलब थायमीन की जहां तक हम बात करते हैं तो ये थायमीन डीएनए में भी होता है, ये थायमीन ट्रांसफर आरएनए में भी होता है। यानी आज के बाद अगर आप ये बोलते हैं कि थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो ये बात ठीक नहीं मानी जाएगी। आपको बोलना यह है कि यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए। उसके कुछ अलग कारण भी होते हैं। फिलहाल आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में जो यूरेसिल होता है वो यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर के बाद जो पहला कॉन्सेप्ट आपका आएगा वो ये आएगा कि यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए। मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। और ये ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में बिल्कुल सामने टी आपको बना हुआ साफ दिखाई दे रहा है।
जब आपको टी बना हुआ साफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ये नहीं बोलना है अब कि आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता। क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? सबको Yes, ये sir. स्लाइड दिखाई दे रही है? ओके। जी सर, जी सर। मैंने पिछले दिनों जो बॉटनी की क्विज कराई थी, उन बॉटनी की क्विज में मैंने अक्सर ये एक क्वेश्चन रखा था सामने और पूछा था कि मेंडल्स के क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो बताइए कि इस क्रॉस का रेशो क्या होगा। और पूरे भारत में मेरी जो बॉटनी की क्विज थी वो तकरीबन भारत के सभी राज्यों में खेली गई और बाहर के भी 8-9 देशों में, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग श्रीलंका, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सब जगह खेली गई। और मुझे बेहद अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि जब भी ये क्विज खेली जाती थी तो ये जो मेंडल का क्रॉस में दिया करता था, उस क्रॉस का रेशो लगभग सभी, मतलब 10%, 20% लोगों को छोड़ के लगभग सबने गलत जवाब दिया। और गलत जवाब देने के बाद जो मुसीबत थी वो ये थी कि लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थे कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। मैं आपको ये सामने एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों जीनोटाइप में सिर्फ ये एक मोनोहाइब्रिड कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। बाकी जो जीन एलील बी और एलील सी हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेज में है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे वो 2 गैमीट इस साइड में बनेंगे, 2 गैमीट उस साइड में बनेंगे। और जब 2-2 गैमीट बनेंगे तो जो पनेट स्क्वायर है वो 4 का बनेगा। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें दोनों तरफ सिर्फ एक हाइब्रिड है। आप जरा गौर से इसको देख लें, इसमें दोनों तरफ एक ही हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड नहीं है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। अगर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता तो यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी इधर भी होता और इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी होता। चूंकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल हेट्रोजाइगस स्टेज है इसलिए द क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो, फिनोटाइप रेशो होता है 3:1। और देखिए नीचे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई आपसे, मैं इसी के साथ में ये बात बताता चल रहा हूं आपको कि अगर 3:1 की का मल्टीप्लाई 3:1 से कर दिया जाए तो डाई हाइब्रिड रेशो निकल आता है। ट्राई हाइब्रिड रेशो निकालने के लिए आप मोनो हाइब्रिड 3:1 का मल्टीप्लिकेशन 9:3:3:1 से कर दीजिए। तो अगर 3:1 को डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, 27993 होना चाहिए यहाँ पर, 27993। और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 9 जा 9, 3 3 1। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो मोनो की डाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो निकल आएगा। ये 27993 होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई कि अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो इसका रेशो 3:1 होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। अगर 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है तो ये बात हम लोग बरसों से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इधर जो नई बुक्स आई हैं, जो नया इजाफा हुआ है, जो नई चीजें हमको जानने को मिली हैं, उसमें आप गौर से देखिए कि 20 की जगह 22 अमीनो एसिड्स की बात अब हो रही है। यानी कि अब अगर आप ये बोलें कि प्रोटीन बनाने के लिए जितने अमीनो एसिड्स हमको चाहिए वो 20 नहीं 22 अमीनो एसिड्स हैं। तो 22 अमीनो एसिड्स को देखें अगर आप, तो जो 21वां अमीनो एसिड है वो है सेलेनोसिस्टीन, जिसको हम डिनोट करते हैं SEC से या U से। ये एक दूसरे अमीनो एसिड सिस्टीन की तरह होता है, लेकिन
इसमें सल्फर की जगह सेलेनियम होता है, और सल्फर की जगह अगर सेलेनियम होता है तो जाहिर सी बात यह है कि ये सिस्टीन की तरह तो हुआ, लेकिन सिस्टीन को फॉलो नहीं करता, तो ये सेलेनोसिस्टीन है। आप अगर गौर से देखें तो ये 21वां अमीनो एसिड है और ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में सहायक है और ये हर जगह मिलता है। और एक जो इसकी बहुत अच्छी बात है, आप जब भी आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो अक्सर आप पढ़ते हैं कि जो जेनेटिक कोड है हमारा, जो कोडॉन्स हैं, वो हमारे हर एक कोडॉन का मतलब होता है एक अमीनो एसिड। जो ट्रांसलेशन होता है उसमें एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब every time a transfer RNA comes with a new amino acid and it codes for a new amino acid if there is a anticodon. A codon is found on mRNA, anticodon is on transfer RNA. अगर आप गौर से देखें, केवल 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, और वो 3 कोडॉन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA। यानी 3 स्टॉप सिग्नल ऐसे होते हैं हमारे जेनेटिक कोड में जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। और आप यहां पर मजे वाली बात क्या देख रहे हैं कि ये जो अमीनो एसिड है हमारा सेलेनोसिस्टीन, ये वो अमीनो एसिड है जो कोड कर रहा है, जिसको कोड कर रहा है UGA। यानी अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें जेनेटिक कोड जो होता है उसमें UGA स्टॉप कोडॉन होता है। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, लेकिन UGA जो एक स्टॉप कोडॉन है वो अभी पता लगा है कि ये एक 21st अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन को कोड करता है। अब ये कितनी एक अजीब सी बात है कि एक तरफ अभी तक जो हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते आए हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि ये स्टॉप कोडॉन होता है, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ये स्टॉप कोडॉन वो है जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक हम लोगों को जानकारी में नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि खुद मुझे ये जानकारी अभी लॉकडाउन में ही मिली है। तो एक तो 21वां अमीनो एसिड हुआ सेलेनोसिस्टीन, 22वां अमीनो एसिड हुआ पायरोलाइसिन, जिसको PYL या O से हम डिनोट करते हैं। पायरोलाइसिन को अगर हम देखें तो ये लाइसिन की तरह होता है, लेकिन पायरोलाइसिन केवल बैक्टीरियल प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है और ये भी UAG से कोड होता है। यानी कि 21वां अमीनो एसिड हुआ सेलेनोसिस्टीन और 22वां हुआ पायरोलाइसिन। सेलेनोसिस्टीन इज फाउंड एवरीवेयर, but pyrrolysine is present in bacterial proteins only, which is coded by UAG. तो 21वां और 22वां अमीनो एसिड आप लोगों की हायर कंपटीशंस के लिए, CSIR नेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि हमारी आने वाली जो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की जो क्विजेस होंगी उनमें ये क्वेश्चन बाकायदा शामिल होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए खूब अच्छे से, बल्कि अगर कॉपी पेन आपके पास हो तो अब तक आपको नोट कर लेना चाहिए था। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लीजिए, ये एक ऐसी चीज आपके सामने दिखाई दे रही है जिसमें आप ये समझिए कि जादूगर ने हेड से खरगोश नहीं, हेड से टाइगर निकाला है। इस स्लाइड का सब लोग फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज जल्दी आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। दरअसल है क्या, अभी तक हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या हम कोई एंजियोस्पर्म्स को पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। जो सीड प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म को अलग रख दें तो एक तो डाइकॉट हुआ जिसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, एक मोनोकॉट हुआ जिसमें 1 कॉटिलीडन होता है।
अब मैं आपको ये बता दूं कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1998 में, दूसरा आया इसका रिसर्च पेपर 2003 में, तीसरा आया 2009 में, और चौथा पेपर पब्लिश हुआ 2016 में। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन स्टेट्स दैट dicot does not exist now in this world. डाइकॉट इस दुनिया में अब कोई चीज नहीं रह गई है। यानी कि आज के बाद आप अगर डाइकॉट को कुछ बोलेंगे तो वो होगा यू डाइकॉट। आप अगर गौर से देखें तो आपको यू डाइकॉट वर्ड दिखाई दे रहा होगा। अगर अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि अगर डाइकॉट की जगह हम यू डाइकॉट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर मोनोकॉट की जगह हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? दरअसल मोनोकॉट की जगह हम कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोनोकॉट एग्जिस्ट कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। तो अब मोनोकॉट और यू डाइकॉट में फर्क क्या है? क्या हम अभी भी ये कह सकते हैं कि मोनोकॉट में एक कॉटिलीडन होता है और यू डाइकॉट में दो कॉटिलीडन होते हैं? नो, अब हम इस बात को नहीं कह सकते। तो फिर इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 3 पोर्स हैं, यानी अगर ये ट्राइकॉल्पेट है, अगर इसमें 3 खांच हैं, अगर इसमें 3 छिद्र हैं, तो पॉलन ग्रेन कहलाता है ट्राइकॉल्पेट। और ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स अगर कहीं पर हैं तो वो प्लांट हुआ यू डाइकॉट। इसका मतलब हम यू डाइकॉट को ट्राइकॉल्पेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे आप यू डाइकॉट बोलो, चाहे आप ट्राइकॉल्पेट बोलो। तो फिर हमको बोलना क्या चाहिए? हमको बोलना चाहिए ट्राइकॉल्पेट। यू डाइकॉट हमको क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि यू डाइकॉट जब आप बोलते हैं तो डाइकॉट से कंफ्यूजन होता है। यानी अगर आपको कोई पूछे कि ये प्लांट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे आइदर इट बिलोंग्स टू ट्राइकॉल्पेट इफ इट हैज 3 कॉल्पाई इन इट्स पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। अगर इसके पॉलन ग्रेन में 3 पोर्स हैं तो ये ट्राइकॉल्पेट हुआ। जिसमें ज्यादातर डाइकॉट आते हैं, सारे डाइकॉट जो पहले डाइकॉट थे वो नहीं आते हैं। तो क्या वो डाइकॉट मोनोकॉट में आने लगे? नो, मोनोकॉट में सिर्फ मोनोकॉट आते हैं। तो फिर मोनोकॉट क्या हुए? मोनोकॉट वो हुए जिनके पॉलन ग्रेन्स में सिंगल फरो पाई जाती है। अगर 3 छिद्र हुए तो ट्राइकॉल्पेट, 1 छिद्र हुआ तो मोनोकॉट। यानी प्लांट या तो ट्राइकॉल्पेट होगा या मोनोकॉट होगा। यानी ट्राइकॉल्पेट और मोनोकॉट के अलावा क्या कोई और कैटेगरी भी इस समय वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है? केवल 2 या 3% प्लांट रह गए हैं। 97% प्लांट जो हैं वो या तो ट्राइकॉल्पेट हैं या मोनोकॉट हैं, और जो बचे 2-2.5-3% प्लांट रह गए हैं उनको रखा गया है पेलियो बेसल एंजियोस्पर्म्स में। पेलियो डाइकॉट, बेसल एंजियोस्पर्म। बेसल एंजियोस्पर्म का मतलब ये हुआ ना ये ट्राइकॉल्पेट हैं ना ये मोनोकॉट हैं, ये वो हैं जो ना ट्राइकॉल्पेट में रखे जा सके ना मोनोकॉट में रखे जा सके। इनको किस में रखा गया? इनको बेसल एंजियोस्पर्म्स में रखा गया। इसके कुछ और 2-3-4 ऑर्डर बनाए गए हैं। कुल मिला के इस समय वर्ल्ड में एपीजी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में सिर्फ 8 ऑर्डर हैं, जिसमें पहला है मोनोकॉट, दूसरा है ट्राइकॉल्पेट, बाकी 6 ऑर्डर और हैं। फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको सिर्फ याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं वो या तो ट्राइकॉल्पेट हैं या मोनोकॉट हैं। आपको डाइकॉट शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या ये बात आप क्लास में बोल सकते हैं? यहां पर हमारे उप्रेती साहब की बात हमें याद आती है कि अगर बताने वाला हमसे ज्यादा जानता है
वो तभी हमें अच्छा बता पाएगा, वो तब अच्छा जान पाएगा जबकि वो खुद पढ़ेगा। आपने देखा होगा कि मैं जितनी क्विज कराता हूं, जब मैं क्विज कराता हूं तो मैं मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूं, तो मैं पढ़ाई करता हूं। मैं 10 क्वेश्चन बनाने के लिए 2.5, 3, 4, 5 घंटे भी मुझे कभी कभी लग जाते हैं, और कभी कभी तो नहाना धोना सब छोड़ छाड़ के मैं इसी पे लग जाता हूँ, क्योंकि इसमें इतना मजा आने लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं कोई नई चीज आप लोगों को दे पाने में सक्षम हो पा रहा हूं। तो आज के बाद बोले आप जरूर डाइकॉट, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की बात तो हो रही है, वन नेशन वन मेडिकल की भी बात हो रही है, लेकिन वन नेशन वन सिलेबस की बात कब होगी भगवान जाने। तो फिलहाल आप चलाते सब रहिए, लेकिन दिमाग में रखिए कि नाउ द कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड। द प्लांट्स इज आइदर ग्रुप्ड अंडर द हेड ट्राइकॉल्पेट, और इट इज बीइंग ग्रुप्ड अंडर द हेड मोनोकॉट, or it is being grouped in basal angiosperms. I think it is clear. So we move now. Next slide. Energy partitioning. Plants, on the basis of their energy partitioning, energy allocating, plants are grouped, organisms are grouped in ईश्वर, देखो डॉक्टर शंकर मंडल जी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा आकर के देखो, कोई जो ज्वाइन करना चाह रहा है उनको ज्वाइन करवा दो। So plants are divided into R selected categories or K selected categories. R selected categories are those which has rapid development, and K selected organisms are those which have slow development. यानी कि आर सिलेक्शन में वो सारी कैटेगरीज आती हैं जिनके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी केयर कोई नहीं करता। के सिलेक्शन में भी ये स्पीसीज कम हो जाती हैं, बेटर कंपटीटर्स हो जाते हैं, और इनका जैसे आप यूं समझ लो, अगर किसी जगह पर अनलिमिटेड फूड हो और संख्या कम हो, तो फिर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? जम के खाएगा और जम के रिप्रोडक्शन करेगा। वो कैटेगरीज रख दी जाती हैं आर सिलेक्शन में। अगर वो 1000 बनेंगी तो 900 उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पेरेंटल केयर उनके यहां नहीं होती। के सिलेक्शन में एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, फूड सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, तो इनका नंबर कम होता है, एंड दे आर बेटर कॉम्पिटिटर्स। तो आर सिलेक्शन के सिलेक्शन को आप बस ऐसे समझ लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आर सिलेक्शन के सिलेक्शन के मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। सो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये नया आया है, बल्कि एनसीईआरटी और नीट की जो बुक चल रही है 11th की, उस 11th की एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल लेटेस्ट मैंने देखा है कि फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही दिखाया गया है। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज अब इस समय फास्टेस्ट एंजाइम नहीं है, इस समय फास्टेस्ट एंजाइम कैटालेज है। मैंने ये रेफरेंस पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स, जो न्यू दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं पाथफाइंडर एकेडमी, मैं उनकी बुक्स को बहुत फॉलो करता हूं, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप CSIR नेट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप पाथफाइंडर की बुक्स को फॉलो करिए। डॉक्टर प्रणब कुमार पाथफाइंडर एकेडमी में, मैंने उनकी किताब में ये पढ़ा, उनसे बात भी की, उनका रेफरेंस भी यहां पर दे रहा हूं कि ये चीज मैंने वहां से निकाली है, और तो ये आपको पढ़ना चाहिए कि फास्टेस्ट एंजाइम इज कैटालेज, नॉट कार्बोनिक अनहाइड्रेज। एक नया कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो G0 स्टेट में होती है। आपने जब सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा G1 S G2, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा G0 स्टेट, जब वो डिवीजन नहीं कर रही होती हैं। तो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर प्रेजेंट इन G0 स्टेट। इसकी डिटेल फिर कभी बताएंगे, अभी टाइम इज रनिंग फास्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है
आपने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट नाउअडेज वी आर वर्किंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डीएनए एंजाइम, यानी कि डीएनए एक्ट्स एज एंजाइम्स, एंड एब्जाइम्स, यानी व्हेन एन एंटीबॉडी विद कैटालिटिक एक्टिविटी इज नोन एज एब्जाइम। राइबोजाइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो गया है, लोग अब जानने लगे हैं। राइबोजाइम इज व्हेन आरएनए एक्ट्स एज कैटलाइज, कैटलिस्ट। जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो हम उसे आरएनए एंजाइम बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी थॉमस सेक ने की थी। और जब उन्होंने बताया कि द वर्ल्ड वाज एन आरएनए वर्ल्ड, ये दुनिया पहले आरएनए वर्ल्ड ही थी। जब आरएनए ने कैटलिस्ट का काम किया तब आरएनए से डीएनए बना और उसके बाद प्रोटीन बनी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब डीएनए एंजाइम और एब्जाइम पर भी काम हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जानते हैं कि ये सेल या तो प्रोकैरियोटिक होती है या यूकैरियोटिक होती है, लेकिन अक्सर हम लोग अपने बच्चों को या बच्चे हमसे जानना नहीं चाहते हैं और वो नहीं जानते हैं कि मीजोकैरियोटिक सेल भी होती है कोई। जब हम मीजोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वो सेल होती है जिसका न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है, लेकिन उस न्यूक्लियस में डिवीजन एमाइटोसिस की तरह होता है, जो कि दरअसल प्रोकैरियोटिक होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और यहां पर मौली कौल जी, मौली कौल जी मेरे ख्याल से शायद कोलकाता से हैं। मौली कौल जी, आप कहां से हैं? क्या आप एक बार चैट बॉक्स में बता सकती हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं JNK से हूँ। जम्मू एंड कश्मीर, ओह टू फार। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम आप। थैंक यू सर। और मैं आपको जो आपने बात पूछी है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये स्लाइड आपको विजुअल हो रही है? यस सर। ओके, राइबोजाइम का कॉन्सेप्ट आप जानती हैं? यस सर। राइबोजाइम व्हेन आरएनए एक्ट्स एज एंजाइम, ओके। यस सर। लेकिन अब इस समय डीएनए एंजाइम और एब्जाइम दोनों पे काम हो रहा है। डीएनए एंजाइम इज द व्हेन डीएनए एक्ट्स एज कैटलिस्ट। अभी क्या डीएनए भी कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है? अगर डीएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है तो उस एंजाइम को हम बोलेंगे डीएनए एंजाइम्स। और अगर एंटीबॉडी, आप जानती हैं एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती हैं, यस सर। तो when antibody acts as catalyst it is known as enzyme। ओके। और इस पे बहुत काम हो रहा है, इस पे बहुत काम हो रहा है। और मैं आपको, आपने ये सवाल पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा। पाथफाइंडर एकेडमी डॉक्टर प्रणब कुमार की, आप न्यू दिल्ली से, आप, मैं आपको उनका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात sir। करके वो बुक्स ले लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पढ़ा सर, आई वो- हैव पाथफाइंडर बुक्स। तो फिर इस बिल्कुल रिसेंट वाली जो एकदम बिल्कुल नहीं आई है, अभी 6 महीने पहले, नहीं, मेरी नहीं, वो नहीं है, पुरानी है मेरे पास। तो आपके पास ब्लैक कवर वाली होगी। यस सर। हाँ, अब आप ब्लू कवर वाली, बल्कि मैं, अगर आप कैमरा देख सकते हैं तो ये मेरे सराहने रखी रहती है, अगर आप देख पा रही हैं। यस सर, आई कैन सी। क्या आपको हमारा ये यस सर, इट इज ये- विजिबल। नाम लिखा दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। और ये इस कवर वाली आप मंगा लीजिएगा। और ये अंदर डॉक्टर प्रणब कुमार जी सर। और उनकी वाइफ उषा मीना जी की फोटो है, जी सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, जब बात यहां तक आ गई है, बात अगर यहीं पे खत्म हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन बात जब आगे बढ़ गई है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 वॉल्यूम हैं इनके। एक वॉल्यूम अभी मैंने आपको दिखाया, दूसरा वॉल्यूम Gayatri Devi Koni. Hi ma'am, I also from JNK. ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से अगर और भी लोग हों तो मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं।
अगर और भी लोग हों। मैम अगर आप मधु मैम, मौली मैम, कॉल मैम, आप ये क्या देख पा रही हैं एप्जाइम लिखा हुआ? Yes, sir. सर इस बीच ये में है स्वागत करना चाहूंगा हमारे महाविद्यालय की संरक्षिका, हमारी प्रिंसिपल मैम प्राचार्य महोदया का, वो हमसे जुड़ गई हैं, वो मेरी लॉगिन आईडी से वो बात करेंगी आपसे। आप अपना कंटिन्यू जी कीजिए जी सर। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम। कैमरा भी ऑन कर दीजिए। तो ये मौली मैम, आप एप्जाइम देख पा रही हैं? Yes, sir. ओके ओके, ये पेज नंबर 128 है। और इसी के ऊपर, इस एप्जाइम के ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर, आप अगर देखें तो डीएनए जाइम आपको दिखाई दे रहा होगा। So इतना clear नहीं है। देखिए आप, Yes, sir. अब दिखाई दे गया हो शायद Yes, डीएनए sir. एंजाइम। Yes, sir. हेडिंग्स में दिखा रहा था आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 128 पेज पर है, जिसको आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको नशा हो गया हो। मतलब आप मतलब जैसे हेलुसिनेशन हो जाता है हम लोगों को। मैं तो इनका दीवाना हूँ। मतलब मैं अपनी जिंदगी में मैंने इतनी इतनी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं। मेरे पास तकरीबन 200 बुक्स हैं बॉटनी की। जो बुक मुझे मिलती है, प्रेस्कॉट हो, पेल्जार हो, लेनिंजर हो, डेवलिन हो, जो हो, मैं सब खरीद लेता हूँ। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मैं इन्हीं को मानता हूँ। लेकिन जब से मैंने पाथफाइंडर को पढ़ना शुरू किया 12-13 साल पहले से, तो मैं इनका दीवाना हूं। और ये जो भी नई किताब निकालते हैं, सबसे पहले मुझको सप्लाई कर देते हैं बेचारे। So भले what is the आदमी। difference between their new edition and old edition? मैडम, मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। नहीं इतना नहीं। डिफरेंस है, Okay, fine. इतना डिफरेंस है। मतलब इतनी ज्यादा चीजें नई आ गई हैं। और बायोकेमिस्ट्री का तो जवाब नहीं कोई इनकी Yes, sir. किताबों का। मैं अपना आपको नंबर मेरा होगा आपके पास, आप मुझे फुर्सत से फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। और Yes, उनका sir. नंबर Sure. भी दे दूंगा आपको, ठीक है? Sure, sure, तो sure. Continue. कैन वी Thank you. मूव अहेड? Yes, yes. ओके, थैंक यू। मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं ये बता रहा था कि मीजोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, वो, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है सबको? जी सर, दिखाई दे रही है। ओके ओके। जिनका न्यूक्लियस यूकैरियोटिक होता है, लेकिन जिसमें डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन प्रोकैरियोटिक होता है, यानी ए माइटोसिस से होता है। एंड मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड होगी। ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइट, जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद, वो बहुत कायदे से इस बात को समझ लें कि ये आज के बाद अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉट दी सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स नहीं है, ये पर्याय नहीं है। ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइट में बहुत अंतर है। ब्रायोफाइटा, जब ये फाइलम इस्टेब्लिश किया गया था, तब इस ब्रायोफाइटा को बनाया गया था और ये कहा गया था कि ये वो ग्रुप है, ये वो फाइलम है विच सोलली बिलोंग्स टू मॉसेस। केवल मॉस का बना होता है ये, यानी इसमें केवल मॉस आते हैं। लेकिन जब बाद में ये एलेबोरेट हुआ और चीजें डिस्कवर हुई, तब एक शब्द नया इजाद हुआ, ब्रायोफाइट्स। दैट इंक्लूड्स liverworts, that includes hornworts, that includes mosses। और अगर आपने हमारी रीसेंट वाली क्विज की है, जो इस समय चल रही है, प्लांट्स, बॉटनी क्विज 9 प्लांट्स, जो इस समय, जिसका तीसरा दिन है आज, जिसको 700-800 लोग खेल चुके हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेरा। एंड वंस अगेन द थिंग इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम the Pathfinder Life Science book, written by the most intelligent, the most intellectual personality in the field of life sciences, that is Dr. Pranab Kumar. I find each and every magic of life science from the magical world of, in the form of Pathfinder books written by Dr. Pranab Kumar. So this is, I think, I have cleared all the things which I want to introduce you, that there are some new concepts in the field of life sciences. And once again, I will move. The first one is thymine. It is also found in RNA. 3:1 ratio, 22 amino acids, not 20.
APG, U dicot or tricolpate, no dicot. Energy partitioning, that a species is classified under the head R selection or it is K selection. Fastest enzyme is catalase, not carbonic anhydrase. Again, the thing which has been extracted from the book Pathfinder Academy. Most cells in our body is in G0 state. The funda which I found in the book Pathfinder Academy. Ribozyme, DNA zyme, F zyme. I cleared you everything I described. The mesokaryotic cells, and the last but not the least is bryophyta or bryophyte. So thank you very much, spectators, the listeners, the viewers. I'm thankful to each and everyone who give their precious time in listening the concepts, new concepts in life sciences. Thank you so much. Over to you, Natoprati. If you have any question, anybody, simply unmute your mic and ask to me. Anyone, most welcome. I would like to give the answer. Thank you. डॉक्टर साहब अमित वैस बोल रहा हूँ। हाँ अमित सर, आइए सर, आइए। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इंफॉर्मेशन के लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्टेड हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो मैं एक बार आपको एज ए गेस्ट लेक्चर हिंदू कॉलेज बुलाना चाहूंगा। अरे सर मोस्ट वेलकम सर। मैं मतलब ठीक है सर। मैं आपके सामने तनु तिवारी, थैंक यू। आप मुझे बुलाएंगे, मैं तो आपसे सीखता हूँ सर। डॉक्टर सरिता, थैंक यू वेरी मच। बातें कर रहे हैं सर, आप मेरे सीनियर, आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये तो आपका बड़प्पन है सर, वरना तो सर खत्म हो जाए जरा, फिर मैं एक निवेदन आपको भेजता हूँ बाकायदा ऑफिशियल, और एक इनवाइटेड लेक्चर आपके लिए अरेंज करवाना है मुझे। उम्मीद है आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। अरे मैं बिल्कुल सर स्वीकार करूंगा। हालांकि चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, लेकिन चलिए फिर भी मैं नीलम मनोला जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नूतन श्रीवास्तव जी, कल्पना मोलिकॉल जी, सिंपल मिश्रा, सिद्धि विनायक, डॉक्टर सप्ता तनेजा, निरुपमा डालाकोटी, प्रताप सिंह, गायत्री देवी, प्रीति जायसवाल, माधुरी पुष्पलता, आयुष पाठक, प्रीति जायसवाल, रूबी शेख, and those who liked the lecture and say something in the chat box, and I would have been more happy if somebody asked the question. And Gayatri from Jammu and Kashmir, Gayatri Devi, thank you very much. And Dr. Amit Vais, thank you. And Zainab Fatima, thank you so much for being here. And anytime, Dr. K. Karthikeyan, I think you are from Professor of Botany, Government Arts College, Kumbakonam, Tamil Nadu. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Bhavna Bhatt, thank you so much. Alia Sheikh, thank you so much. And over to you, Dr. Atul, sir. Thank you, sir. Thank you, Adarsh, sir, for illuminating our students' knowledge. The lecture was very informative and remarkable. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लाइफ साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो गए होंगे। और सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी पाथफाइंडर को ही फॉलो करती हूँ अपने एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल दीवानी हूँ पाथफाइंडर की। एंड सर मैं आपसे कहना चाहूंगी दैट यू ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑल द लिसनर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लेक्चर टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अतुल सर से मैं अतुल सर आप जो मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप अतुल सर कन्वे करेंगे। मैं अतुल सर एक मिनट मुझे और दीजिएगा आप। मैं जितने भी लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो मैं सोसाइटी हम लोग चलाते हैं, सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस, उसमें ऐसे बहुत से लेक्चर्स, बहुत सी क्विजेस, बहुत से सेमिनार, बहुत से वेबिनार्स होने हैं अभी। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसके मेंबर बने। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस भेज दूंगा। आप उसके मेंबर बने, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आयुषी गुप्ता थैंक यू, ऋतु पांडे थैंक यू। हाँ यस सर, थैंक यू सर। So now we move on to our next session, which is valedictory. I welcome all the dignitaries from different colleges and universities across the country. सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अतुल सर आपका माइक म्यूट हो गया सर।
अतुल सर प्लीज चेक कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे। अतुल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। निरुपमा मैम आपने फोटोग्राफ ले लिए थे? हाँ लिए थी सर, लिए थे। अच्छा अच्छा। अतुल सर कहाँ चले गए अतुल सर? अतुल सर आपका माइक म्यूट हो गया। अतुल सर आपका माइक म्यूट है सर। जी सर, मैंने मोबाइल से लॉग ऑन किया। इस समय आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। So, thank you, Dr. Adarsh. Now we'll move upon to our next session, which is valedictory. And in this session, I welcome all the dignitaries and guests from across the country. Thank you all for joining us. And now I will call upon Dr. Nirupama Dalakoti, our rapporteur, to present a short report on this lecture series. Over to you, Dr. Dalakoti. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I am extremely honored and privileged to getting an opportunity to get vote of thanks to our prestigious dignitaries who could spare precious time for this lecture series from their busy schedule. This 7-day lecture series was indeed a very successful event, and this could not have been possible without your presence. The series was started on 26 June with Dr. Rajen Singh from Bareilly College, who delivered his lecture on immunity, the fight against diseases. On 27th June, Dr. Pramod Kumar from TSR Government Degree College, Pauri Garhwal, presented his lecture on water pollution, the problem and the solution. On 28th June, Dr. Deepika Saini from Chamanlal Mahavidyalaya, Haridwar, who delivered lecture on science and environmental degradation and overview. On 29th June, Dr. Ahmed Parvez from Radhe Hari Government PG College, Kashipur, US Nagar, Uttarakhand, who gave lecture on insect pests and their management. On 30th June, Dr. Amit Vash from Hindu College, Muradabad, delivered lecture on how to get life science on fingertips. On 1st of July, Dr. Sankar Mandal from Government PG College, Pithoragarh, presented lecture on immunology against coronavirus. The final lecture series was delivered by Dr. Adarsh Pandey, who delivered lecture on new concept of life science. I would like to thank all our eminent and renowned speakers for making this event illustrious and successful. All the lecture of the series were full of information, and I feel the students who have attended this series will be able to extract best result by applying the tips in their studies. I believe that the knowledge you have shared will help immensely in the development of students. I would like to give special thanks to our renowned speaker, who is also a great writer and poet, Dr. Adarsh Pandey, who coordinated in the entire lecture series and made this event popular by posting the content and video of the lecture in social media. Once again, I thank you all for having spared your precious time for all of us. We look forward your participation on future event also. At last, I would also like to thank the principal of Bajpur Degree College, Dr. Kamla Chanial ma'am, and event coordinator, Dr. Nutan Srivastav, and organizing secretary, Dr. Atul Upreti, for having organized this wonderful series. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words. Now I would like to call upon our convener, Dr. Professor Nutan Srivastav, ma'am, to convey our sense of gratitude to our guests. Thank you. Respected Principal Ma'am, honorable speakers, and dear students. Now we come to an end of the lively gathering. We hope you all had a nice morning every day last week. On behalf of the organizing committee and the audience, I feel privileged and honored to get this opportunity. And I
मैम वॉइस नहीं आ रही है।